अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन और हदबंदी बिल पेश, अपोजिशन ने हुकूमत के तरीक़ेकार को बनाया निशाना, मुत्तहदा जदोजहद का ऐलान। ख़वातीन रिजर्वेशन महज बहाना, असल एजेंडा हदबंदी, मोदी शाह की जोड़ी का तरीक़ेकार ख़तरनाक, जयराम रमेश का इल्ज़ाम। दिल्ली में मरदमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू, घर घर सर्वे के जरिए तैयार होगा मुकम्मल रिकॉर्ड। दिफा, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रिया, मोदी का बयान। आंध्र प्रदेश के कन्नूर में खौफनाक सड़क हादसा, बोलेरो गाड़ी और लारी के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम में 8 अखीरतमंदों की मौत। और गाजियाबाद के एक देहात में अचानक लगी आग, हर तरफ तबाही का मंजर, एक के बाद दीगर सिलेंडर फटने से मची चीख व पुकार। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया। मरकज़ी वज़ीर बराए क़ानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने मौजूदा बिल पेश करके बहस का आगाज़ किया। इन्होंने हदबंदी बिल 2026 भी पेश किया, जिससे कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन नाफिज करने पर बहस का स्टेज तैयार होगा। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के क़वानीन तरमीम बिल को पेश किया। पार्लियामेंट में इन बिलों के पेश किए जाने पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने बिल की सख्ती से मुखालिफत कर दी। हदबंदी बिल को ज़्यादती करार दिया और कहा कि ये दस्तूर के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। असद ओवैसी ने बिल के पेश करने पर भी तशवीश जताई। Because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South ruled and other areas the ruler, and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर। कांग्रेस सरबराह खरगे ने कहा कि हम ख़वातीन बिल की मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में जल्दबाजी में बिल पेश किया गया गलत है। इन्होंने अपोजिशन के बगैर हिमायत बिल को पेश करना अफसोसनाक करार दिया। हदबंदी बिल को भी खरगे हुकूमत का ड्रामा करार दिया। दोनों बिल्स के खिलाफ मुतहद लड़ने का ऐलान किया और बिलों को मुस्तरद कर दिया। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment.
and we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the Constitution, the executive is taking. And mostly the power which can be executed by the institutions, the Parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. Thank you. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने लोकसभा में पेश किए जाने वाले 3 अहम बिलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी असल बुनियाद ख़वातीन रिजर्वेशन नहीं बल्कि हदबंदी है। अपनी ताज़ा एक्स पोस्ट में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इन बिलों को ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर पेश कर रही है, लेकिन उनका बुनियादी मकसद सियासी नक्शे को अपने हक़ में तब्दील करना है। जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क भर में हदबंदी की तजावीज़ पर संगीन खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इस बात पर कि ये अमल इन रियासतों को फ़ायदा पहुँचा सकता है जहाँ इस वक्त बीजेपी मजबूत पोजीशन में है। उनके मुताबिक इससे कई रियासतों की लोकसभा में निस्बती ताकत कम हो जाएगी, जो जमहूरी तवाज़ुन के लिए नुकसानदा होगा। मुख्तलिफ हलकों से शदीद मुखालिफत के दरमियान मरकज़ी हुकूमत आज पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल पेश किया गया। SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल बीजेपी और उनके इत्तेहादियों के नए फरीब का एक सियाह दस्तावेज़ है, जो दरअसल खुफिया लोगों का खुफिया मंसूबा है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल की हिमायत में बयान दिया। अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करे। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। आई एम नॉट गोइंग टू पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है।
और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। आपका ऑब्जेक्शन, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन? महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाजवादी। सवाल प्रपोर्शन का नहीं है कि सबका 50% बढ़ा दो। सवाल ये है 50% बढ़ेगा, पंजाब तो 19 पे रहेगा, पर यूपी 142 पे रहेगा, केरल 23 पे रहेगा, उत्तर प्रदेश 142 पे रहेगा। तो इसलिए सवाल ये है कि ये जो भारतीय लोकतंत्र का बिल्कुल बुनियादी नींव है कि एक व्यक्ति, एक वोट और उसका एक मूल्य, वन वैल्यू, उसको आप जो भारत के संघीय ढांचा है उसके साथ एक समानांतर इक्विलिब्रियम किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रिया ने दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देते हुए दिफा, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को गहरा करने के मकसद से कई मुआहदों और ऐलानात पर दस्तखत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्ट्रॉकर के दरमियान बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में इन मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म का ऐलान किया जो कंपनियों और सरमायाकारों के मसाइल हल करेगा और कारोबार करने में आसानी में इजाफा करेगा। आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। यह आपके विजन और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। चांसलर स्टॉकर की विजिट से हम भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में भारत और ऑस्ट्रिया भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। दिल्ली मेट्रो हो या हिमालय पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल, ऑस्ट्रिया की टनलिंग एक्सपर्टीज ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर गुजरात के गिरनार रोपवे तक, क्लीन एनर्जी से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक भारत के कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रियन कंपनियां सक्रिय भागीदार रही हैं। फ्रेंड्स, चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। हमें बहुत खुशी है कि वे बड़े विजन और बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मरदमशुमारी के लिए घरों की गिनती शुरू हो गई है और ये मुहिम 2 माह तक जारी रहेगी। हुकाम ने बताया कि मरदमशुमारी के पहले मरहले को मकान की फहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के तौर पर जाना जाता है, जिसे 30 दिनों के लिए 2 अलग अलग मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। वहीं दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम आने वाले इलाकों में ये अमल इसके फ़ौरन बाद 16 मई से 15 जून के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा।
इस मरहले का बुनियादी मकसद शहर की हर इमारत और ख़ानदान के बारे में मालूमात इकट्ठी करना है, ना कि अफराद की गिनती करना। मरदमशुमारी का काम बाद में दूसरे मरहले के दौरान किया जाएगा। गाज़ियाबाद के एक देहात में अचानक आग लगने से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस आग में 500 से ज़ायद झोपड़ियाँ देखते ही देखते शोला बन गई। आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। इस आतिशज़गी वाक़े में तकरीबन 6 बच्चे लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। हालांकि बच्चों के लापता होने से मुताल्लिक़ किसी अफसर ने अभी तक तस्दीक नहीं की है। आग लगने के फ़ौरन बाद झुग्गियों में रखे रसोई गैस सिलेंडर एक एक कर फटने लगे, जिससे लोगों में चीख पुकार मच गई। मुकामी पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड महकमे की कई टीमें फ़ौरन मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने बिला ताख़ीर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ मंत्रालयम जोन के करीब एक बोलेरो गाड़ी और लारी के दरमियान शदीद टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक दोनों गाड़ियों के दरमियान तसादम इतना शदीद था कि जाए वक़ूफ़ पर कोहराम मच गया और कई अक़ीदतमंद गाड़ी के अंदर ही फंस गए। अफसरान ने बताया कि इस हादसे में जुमला 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 दीगर लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। श्रीनगर के मशहूर डल झील की हिफाजत और सयाहों को बचाने के लिए महकमे आफात समावी ने एक नया कदम उठाया है। फायर सर्विस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कश्तियों में अचानक आग लगने के हादसा पर काबू पाया जाएगा। तमाम जदीद आलत को यहाँ लगाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर से सयाह कश्मीर को आते हैं और उनका सियाहती मुकाम डल झील अहम होता है। मुल्क में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि आज हमने यहाँ पे जो है बोट रैली जो है रखी हुई है, जहाँ पे हमारे डिफरेंट फायर बोट जो है वो पूरे डल लेक में जाएंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी इक्विपमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपके हमारे बोट्स में जो फायर फाइटिंग पंप्स हैं जो कि हमारे फायर फाइटिंग में काम आते हैं, या इसी तरह लाइफ बॉय जैकेट्स, लाइफ बॉय ट्यूब्स। हमारा जो यहाँ पे रिवर फायर स्टेशन नेहरू पार्क है, इट इज़ वेल इक्विप्ड। जितने भी फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे हमने वो रखे हुए हैं। डल लेक जो है वो फेमस है टूरिज्म के लिए, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, मतलब आगे क्या? बहुत ज़्यादा। जैसा आपने पास्ट में भी देखा है, काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स जो है हाउस बोट्स में होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और डायरेक्टर सर की डायरेक्शंस पे हमने कुछ साल पहले ही यहाँ पे जो है इनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की थी। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि यहाँ से जितने भी मैक्सिमम हाउस बोट्स हैं हमको कैटर कर पाएंगे। कहीं पे भी आग लगती है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप इमीडिएटली रिवर फायर स्टेशन नेहरू पार्क या हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया कि वो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की एक्सरसाइज पॉलिसी केस में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के सामने की गई बहस का गैर मजाज वीडियो सोशल मीडिया से फौरी तौर पर हटाया जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालती कार्रवाई की गैर मजाज रिकॉर्डिंग और नशरियाती दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनलाइन समाअत के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक अफसर ने बताया कि हमने कार्रवाई की है, केजरीवाल का वीडियो उनमें से एक अहम है। हमने माजी में भी कार्रवाई की है और जब भी इस तरह के वाक़यात हमारे इल्म में आते हैं, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं। टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 बाअसर तरीन शख्सियात की अपनी सालाना फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली उन हस्तियों को शामिल किया गया जो अपनी तख्लीक़ी सलाहियत, क़यादत, जिद्दत और समाजी असरात के ज़रिए आलमी मंजरनामे को मुतासिर कर रही हैं। इस फहरिस्त में गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और मारूफ शेफ विकास खन्ना भी शामिल हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन और हदबंदी बिल पेश, अपोजिशन ने हुकूमत के तरीक़ेकार को बनाया निशाना, मुत्तहदा जदोजहद का ऐलान। ख़वातीन रिजर्वेशन महज बहाना, असल एजेंडा हदबंदी, मोदी शाह की जोड़ी का तरीक़ेकार ख़तरनाक, जयराम रमेश का इल्ज़ाम। दिल्ली में मरदमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू, घर घर सर्वे के जरिए तैयार होगा मुकम्मल रिकॉर्ड। दिफा, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रिया, मोदी का बयान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में खौफनाक सड़क हादसा, बोलेरो गाड़ी और लारी के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम में 8 अक़ीदतमंदों की मौत। और गाज़ियाबाद के एक देहात में अचानक लगी आग,
हर तरफ तबाही का मंजर, एक के बाद दीगर सिलेंडर फटने से मची चीखों पुकार। इसी के साथ ही कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।